सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर आपका माइक में माइक म्यूटेड है सर। सर आवाज नहीं आ रही, माइक म्यूटेड है। सर So this is the way we can print. Now can we do the same? If I will say star of A, what will happen? It will print 5 obviously, because the star of A is star of 1010, है ना? And what will happen if I will say A plus 1? सर No, this is not valid, not allowed, because A is a constant pointer, and this is the difference between constant pointer and a general pointer. Getting my point? A plus 1 is not possible at all. So we cannot access all the elements of array by using array name as a pointer. Array name को pointer की तरह use नहीं कर सकता मैं, ठीक है, access करने के लिए। मगर अगर मुझे access करना होगा, then I can access A of 0, A of 1, A of 2. Well, these three statements are perfect, not an issue. AI प्लस 1 ब्रैकेट में ही A प्लस A ब्रैकेट A A I plus 1 ब्रैकेट में प्लस I plus 1, हाँ तो क्या दिक्कत है? इसमें वो नेक्स्ट चेंज करें हाँ चलेगा, हाँ, लेकिन ये अगर इस एरे के लिए तुम करोगे तो दिस विल स्किप 5 and it will print 6 and 7, है ना? This is not required for us. This I want to convey you. This is important, बहुत important. बहुत जगह एरे को अगर ट्विस्ट करने की कोशिश करता है तो वो प्रोग्राम में यही पूछेगा, इंटरव्यूज में बहुत, मतलब हाँ, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है एरे का ये। मैं एरे का नेम दे देगा, यू आर की, ओके एरे नेम इज ऑन लगा दिया यार, प्लीज टर्न ऑफ ना, ओके फाइन, हाँ ठीक है। एरे को कल का क्लास तुमने अटेंड किया, हाँ ये तो बात है, ऐसे स्लॉट में अटेंड करेगा तो कैसे होगा? तो वेब सीरीज छोड़ता है बीच का है, नहीं ना? तब फिर ये क्यों छोड़ देता है? दिस इज एग्जैक्टली सेम, उससे भी खतरनाक है ये। मेरे तुमने बहुत सारी सीरीज देख रखी, अंदाज लगा अच्छा ऐसा हो गया होगा। दिस इज नॉट लाइक, ऐसा मत करो। एक्चुअली लास्ट क्लास में मैंने बताया कि पॉइंटर तो वी हैव डिस्कस्ड, एट द सेम टाइम मैंने बताया कि एरे का जो नेम होता है इटसेल्फ इज अ पॉइंटर, ठीक है, किसका? टू द वेरी फर्स्ट एलिमेंट, पहले एलिमेंट को ये पॉइंट करता है ऑटोमेटिकली, बिना कुछ बोले हुए, ऑटोमेटिकली।
इसके लिए हमें लिखना पड़ता है, इस पॉइंटर्स के लिए हमें लिखना पड़ता है that the p is pointing to b, p is taking the address of b. इसके लिए लिखना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली implicit है. See, understand the meaning of implicit and explicit. Whenever I say implicit, meaning it's automatic. Na? Explicit meaning we are doing something. है ना? So this is an explicit statement. We are doing something. We are saying that okay, p contains address of b. But here we are not writing a contains the address of first element. But by default, implicitly, a contains the address of the very first element and constantly point only first element. ना? कभी चेंज नहीं होगा. जब तक प्रोग्राम चलेगा तब तक ए पहले ही को पॉइंट करता रहेगा और किसी को पॉइंट नहीं करेगा. इसलिए ए को इंक्रीमेंट करना एक इनवैलिड स्टेटमेंट है. जनरली पी को हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं. अच्छा, पी को इंक्रीमेंट करने के लिए क्या रूल्स थे वो भी मैंने कल बताया था. How could we increment t plus 1 meaning what? T plus 1 meaning jump. It's not an addition, it's a jump. And that depends on type of p. P is an integer, so it will have 4 jump. And again depends on the size of integer. If the size of integer is 2, jump will be 2, depending on compiler to compiler. That's why in generic, I told you that okay, this is the way we go look at it. Okay, so heading next. So we have seen programs to swap to, Anna. Now see the next thing that I would like to explain you. Then we will come back again. Okay. There was int a. There was int a of 5. So it contains one value, one constant. Sure. One constant, and that is all homogeneous type. All are of type say one homogeneous constant. Homogeneous constant meaning एक ही टाइप का. ठीक है, तो अगर सारा इंटीजर होगा तो एक ही इंटीजर कंटेन करेगा ये. This will contain many homogeneous constant. एक ही जैसा बहुत सारा constant को ये रख सकता है. But what if we need to store many heterogeneous? One heterogeneous constant, one heterogeneous तो हो नहीं सकता है. एक स्पेस है तो उसमें एक ही वेरिएबल रखोगे, तो दो पॉसिबिलिटी है कि या तो बहुत सारा कांस्टेंट रखेंगे तो सब एक टाइप का हो, या बहुत सारा कांस्टेंट रखेंगे तो वो अलग अलग टाइप का हो. तो ये कैसे लिखना है, दैट इज व्हाट द चैलेंज इज. समझ गया बात? मतलब ये अगर एरे था अपना ए में अपन क्या रख सकते थे, सारा इंटीजर रख सकते थे. ए में we could store only float 5.5, 6.5, 7.0, 8.9, 3.6. So this is also possible, this is also possible. Or we can store characters in a, like a, c, hash, and whatever you wish to say. But if it is character, then everything is character, everything is integer, everything is. So is there anything in which, is there any box in which I can store integer also, float also, character also, and all? So this is what we need at this moment. तो कैसे करेंगे, है ना? क्लियर? तभी हमारे पास एक नया बॉक्स मिलेगा. Let us see. Suppose तुम्हें क्या करना है, ये एक बॉक्स बना दिया मैंने. ठीक है, अब इस बॉक्स में मुझे एक इंट
रोल नंबर रखना है स्टूडेंट का, और ग्रेड रखना है स्टूडेंट का, ठीक है, एंड फ्लोट परसेंटेज रखना है, ओके। और भी बहुत सारी चीज रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि 3 ही रख सकते हैं ना, बहुत सारी चीज रख सकते हैं। एंड वी कैन से इंट सेमेस्टर किस डे में वो पढ़ रहा है, there could be many such things, but the important point is we have mixture of variety of things, mixture है सब, बहुत चीजें इसमें। and not only this, we can also say roll number, and we can also say name जो होगा, एक कैरेक्टर मतलब एक अल्फाबेट या एक सिंबल। नेम क्या है? कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट, है ना, बहुत सारा अल्फाबेट। तो वी कैन से दैट नेम इज नथिंग बट एन एरे। अभी रफ एस्टिमेट हम लोग बोल सकते हैं। सो वी कैन से दैट कैरेक्टर नेम, सपोज इट्स वी आर टेकिंग 20 साइज, है ना, एंड देन वी कैन से फ्लोट percentage, and then we can also declare int star p. I don't know whom p will point, but there is also a pointer, it will point something. Meaning what I want to convey you is this box can contain any type of variable that we read till date. इसमें कोई नई बात नहीं है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा रहना है कौन सा रहना, अभी तक जितना पढ़ा सब रहेगा। क्लियर? ये बॉक्स हो गया। बॉक्स का एक मैं नेम दे देता हूं, सपोज आई एम गिविंग दिस नेम इज STUDENT, सपोज स्टूडेंट, इसका नेम दे दिया, इसका भी नेम तुम कर सकते हो। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस बॉक्स। नाउ हाउ C will recognize that this is something which contain different kinds of values, different kinds of constant. To fix a keyword, इसके पहले कीवर्ड फिक्स करना होगा, that is known as struct. This is struct keyword. So the moment you will write a struct student box, within box different types of variable and end it by a semicolon, it's now a data type. It's now a data type which contains this much number. Now see the pictorial diagram. So this is your struct. अभी इसमें क्या है, 4 वेरिएबल है ना, so it has 4 part. This is your roll number part, this is your grade, this is your percentage, and this is same. इसका साइज कितना होगा? 4 बाइट, 1 बाइट, 4 बाइट and 4 बाइट। Getting my point? हाँ ठीक है, देखते हैं। हाँ इसके अंदर भी एरे रख सकते हैं, यही मैं अभी यहाँ दिखाऊंगा, है ना, यहाँ दिखाऊंगा वही, यही सेम चीज मैंने यहाँ देखा। इसमें भी 4 है ना, तो दिस इज एन A, then character array, so this is float and this is int. So this is nothing but your roll number, this is name, this is percentage, and this is a pointer p. इसका भी एक नेम रख देते हैं, so we could say suppose any name, STD whatever, but we need to fix this keyword struct space this, and there is not, space is not required or not relevant, no matter you give a space or not, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ स्पेस दो नहीं दो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे देना पड़ेगा और सेमीकोलन देना पड़ेगा। क्लियर? दैट्स अ पॉइंट। नाउ सी, ये कितना बाइट का होगा? 4 बाइट। दिस इज 20 बाइट। कैरेक्टर 20 कैरेक्टर का एरे है, एंड दिस इज नथिंग बट 4 बाइट, and this is again 4 byte because it's an integer container. कोई समझने में दिक्कत नहीं हुई अभी तक? ऑल क्लियर? पर्पस भी समझ रहे हैं क्यों ये बॉक्स बन गया? ओके,
नाउ इसमें तुम्हारी कुछ वैल्यू हो सकती है, सपोज 5 होगा रोल नंबर, और सपोज 105 हो सकता है किसी का रोल नंबर, ग्रेड कुड बी ए, है ना, percentage is suppose 90%, clear, and same is suppose first semester, clear. Here we can say the roll number is 105, this name is nothing but an array, so there is array within this, clear. So suppose Akash something, na? And this is nothing but your float which will contain your percentage of marks, so 90.5 or whatever, and semester is, oh sorry, it is pointing to someone, I don't know whom it is pointing, okay, so it is pointing some 9010, I don't know right now, I don't know, we will see what whomsoever it is pointing. तो एक ऐसा कंटेनर है अपने पास, बॉक्स है जो अब बहुत टाइप के डेटा को रख रहा है। पर्पस समझ में आ गया क्यों इसका यूज था, इसका ब्लॉक स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि ये दिखता कैसा है। यहाँ जब मैंने एरे लिखा होगा तब तुम्हारा क्लैरिटी बढ़ गया होगा कि अच्छा एक के अंदर इतना, ये एक एरे है, एरे होलसम एक मैं एरे बोल रहा हूँ। तो इट जैसे एरे का नेम होता था वैसे इसका नेम होगा STUDENT, ओके, एंड इट्स नेम इज STD। यहाँ भी इसका 0th फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट है, 0th फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट, क्लियर? एकदम, दैट्स एन कंपल्सरी, एग्जैक्टली, क्लियर? एड्रेस की जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे अभी तुम्हें एड्रेस समझ में आएगा, और एड्रेसिंग ही इंपॉर्टेंट है कुछ भी समझने के लिए। सी कंप्यूटर एड्रेस कैसे करता है, यहाँ पे अब तुम बोलोगे कि सर इसका एड्रेस 1010, इसका एड्रेस 1014, इसका एड्रेस 1018, no, this is not working like this. Actually what computer is doing, in computer organization you will read, or I don't know, there is byte addressability concept. बाइट एड्रेसेबिलिटी का मतलब देखो बहुत सिंपल लेमन स्ट्रक्चर में, यहाँ पे किसी अपार्टमेंट में जितने भी घर है तो तुम हर घर के हर रूम को भी एड्रेस दे सकते हो, है ना, वैसे काउंट करो तो, मगर स्टैंडर्ड वे क्या है, इज टू एड्रेस अ सिंगल हाउस। एक अपार्टमेंट में अगर 50 हाउसेस है तो वी कुड से हाउस नंबर 1 to हाउस नंबर 50। ऐसा भी हो सकता है कि उस हाउस में हर हाउस में 3 रूम या 4 रूम या 2 रूम्स थे, so we can again counting the rooms, so ये अगर अपार्टमेंट है और इस अपार्टमेंट में सपोज 2 घर थे, so we can address one way is to say 0th one and first one, okay। एक दूसरा तरीका एड्रेसिंग का क्या हो सकता है, that अगर इस घर में 4 रूम है और इस घर में 2 रूम है, so we could say 0 1 2 3 4 5, this is the 2 way in which we can address। ऐसे भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है, किसी को लेटर भेजना होगा इस हाउस में तो 0 1 2 3 किसी पे भी भेजेंगे तो हो जाएगा, है ना, 4 5 पे भेजेंगे तो इसे पहुंच जाएगा, इट्स गुड, बट इट इज नॉट रीजनेबल नहीं लग रहा है ना। तो ये जो रेड वाला पार्ट है दैट इज नथिंग बट द बिट इन आवर कंप्यूटर, बिट, एंड ये जो ब्लैक वाला एड्रेसिंग है दैट इज नोन एज बाइट एड्रेसेबिलिटी। मतलब हम रैम में एक्चुअली हम हर एक बाइट को एड्रेस दे रहे हैं। नाउ सी द बाइट एड्रेसेबिलिटी कॉन्सेप्ट, देन ओनली यू विल गेट मेनी थिंग्स। सो कंप्यूटर में जब हम लोग वी आर स्टोरिंग एनीथिंग, सो अगर एक कोड तुमने लिखा ना तो वो कैसा दिखता है, सी 0 1 0 1 0, कंप्यूटर ऐसा लिखता है सब कुछ, और एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट होता है, फिर नीचे से आएगा स्टार्ट होगा। I'm not writing any specific code in case, so this is the way
नाउ व्हाट कैन यू एड्रेस? देयर इज टू वे टू एड्रेस दीज वैल्यूज. कंप्यूटर ऐसे ही रखता है, रैंडमली रखा हुआ है उसके पास सब कुछ. एवरीथिंग इज इन द फॉर्मेट ऑफ 0 1. अब 0 1 जब तो किसी का क्यूरियोसिटी होगा कि सर 0 1 लिख के कैसे वो समझ जाता है कैसा है नहीं है. सी, दिस इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, कैपेसिटर शायद नहीं पढ़ा होगा या देखा होगा तुमने, फिजिक्स में जिसने भी पढ़ा होगा कैपेसिटर होता है ना. कैपेसिटर्स की खासियत क्या होती है? वो थोड़ी देर तक वोल्टेज को रिटेन कर सकता है, अपने पास रख सकता है. कैपेसिटर इज ए डिवाइस छोटा सा जो आपके अपने टीवी का बोर्ड खोलोगे ना तो देखोगे सिलिंड्रिकल सिलेंडर इतना छोटा छोटा सा लीड जैसा निकला होता है पूरा, है ना. तो वो कैपेसिटर है. कैपेसिटर में रुई की तरह कॉटन फील्ड होता है. जब कैपेसिटर फटता है किसी भी टीवी का, तो अब तो नहीं, मतलब पुराने जो बॉक्स टीवीज होते थे उसमें ब्लास्ट होता था कभी कभी. हाई वोल्टेज जब उसकी कैपेसिटी से बाउंड वोल्टेज उसको मिलता था, ब्लास्ट होता था और पूरे चैम्बर में वो कॉटन भर जाता था, है ना. तो कैपेसिटर की कैपेसिटी ये होती है कि वो वोल्टेज को थोड़ी देर तक रिटेन करके रखता है. इसको ऐसे समझ सकते हो, दिस इज नॉट एग्जैक्टली द सेम कॉन्सेप्ट, बट एलईडी बल्ब्स जो होते हैं तो आप देखना जब उसे स्विच ऑफ करते हैं तो धीरे धीरे बंद होता है. अचानक से बहुत सारे अचानक भी बंद होते हैं, बट देयर आर मेनी एलईडीज दोस आर टेकिंग टाइम. क्यों कर पाते? बिकॉज दे कैन रिटेन फॉर सम फ्रैक्शन ऑफ टाइम, रिटेन कर पाते. तो कैपेसिटर का भी यही काम है कि थोड़े टाइम के लिए वो वोल्टेज को रिटेन कर लेता है और धीरे धीरे वोल्टेज को फिर वो रिलीज करता है. कंप्यूटर्स भी तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है टोटल. तो इसमें 0 का मतलब होता है 0 वोल्ट, 1 का मतलब होता है 5 वोल्ट, डिपेंडिंग ऑन परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटिंग 10 वोल्ट भी हो सकता है, मगर सम पॉजिटिव वोल्टेज. ठीक. तो जब कभी भी जितना भी हमारा प्रोसेसिंग है ना, वो इस जब हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओगे देन यू विल रियलाइज कि अभी बाइनरी में भी मैंने पढ़ाया. जस्ट इमेजिन, सी 5 को कंप्यूटर कैसे समझता है? ये 5 का बाइनरी क्या है? 0 1 0 101 1 whatever, है ना. प्रीफिक्स 0 की मैं वैल्यू हटा दूंगा. इसको मैं 8 बिट में लिखता हूँ. ठीक है. 8 बिट में क्यों लिखूंगा? क्योंकि 8 बिट का एक बाइट होता है. तो 101 तो अपने पास है, इसके पीछे मैं 5 0 लगा दे. दिस इज 5. दिस इज एग्जैक्टली 5. नाउ हाउ कंप्यूटर रीड दिस इज 5? सी कैसे करेगा? दिस इज द वेव फॉर्म स्ट्रक्चर और यहाँ पे क्या है? पीरियड्स डिफाइंड है. ये इंटरेस्टिंग है. हार्डवेयर को समझने से ना समझ में आता है कि अच्छा ये, नहीं तो तुम पूरा ब्लैंक हो जाएगा. तो पहला 5 पीरियड तक क्या है? ये 0 है. I should take a different color. So पहले 5 पीरियड तक 0 0 3 4 5. Suddenly it is 1 0 1. So this is 5. तो जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जैसे फ्लक्चुएट होता है तो पहला 8 पीरियड को उसने देखा, यहां से यहां तक 8 पीरियड को देखा. इस 8 पीरियड में देखा कि कहाँ फ्लक्चुएट हुआ, वोल्टेज गेन हुआ. तो इस 2 पॉइंट में वोल्टेज गेन हुआ तो इसको ये 1 1 समझेगा, बाकी सबको 0 समझेगा. और इस तरह से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया जाता है. कहाँ गया ऊपर? वहां 1 है ना. तो इलेक्ट्रिकल टू डिजिटल सिग्नल में कन्वर्जन ऐसा होता है. ठीक है. अभी एनालॉग में भी कन्वर्जन होता है. जब ये सब पार्ट है पढ़ाया जाता है, अभी आप लोगों के कोर्सेज में सब नहीं है. ये एक एनालॉग सिग्नल है. जनरली हम लोग एनालॉग सिग्नल से ही डील करते हैं. यहाँ से वहाँ हाई ट्रांसमिशन एनालॉग सिग्नल से ही होता है. इस सिग्नल को भी कन्वर्ट किया जाता है. इस सिग्नल में सैम्पलिंग करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं. ठीक है. और इस पॉइंट्स को ले लेते हैं, यहाँ के वैल्यूज को ले लेते हैं. सो दीज आर द टेक्निक्स. आई वांट टू कन्विंस यू कि ये 0 1 कैसे कंप्यूटर समझता है. गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि उसके पास तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं, वो सिग्नल से ही उसको कैलकुलेशन करना है. तो वो क्या करता है, तुम्हारा जो 0 1 जाता है
उसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है एंड देन दे ऐड और सब्ट्रैक्ट व्हाटएवर। ऑनलाइन 12, ऑफलाइन 11, 12। तो अभी इसको ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये नहीं मिलेगा तुम्हें। तो कंप्यूटर क्या करता है, 8 बाइट्स के चंक में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बोलेगा ये पहला एड्रेस है, 2 2 4 2 6 2 8 ये दूसरा एड्रेस है, ठीक है, दिस इज नेक्स्ट एड्रेस। ऐसे एड्रेसिंग करता है, यानी एक बाइट को एक एड्रेस देता है, जहां जब एक बाइट कंप्लीट हो जाता है उसको एक एड्रेस दे देता है। इससे भी और एक्सटेंडेड एड्रेसेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स हैं, बट रफ स्ट्रक्चर आप ये समझो। और भी प्रोसेसर जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो बहुत टाइप के प्रोसेसर्स होते हैं, मैं एक बहुत ही बेसिक प्रोसेसर की बात बता रहा हूँ कि इसमें ऐसा होता है कि हर बाइट को एक एड्रेस मिलता है। अब इसका हमारे कॉन्सेप्ट से क्या रिलेवेंस है, दैट वी विल सी। हमारे कॉन्सेप्ट से इसका रिलेवेंस ये है कि देखो यहाँ पे कितने बाइट है हमारे पास, 4 बाइट है ना। तो पहली बात कि पहले बाइट को तो ये एड्रेस देगा 1010। अब इसमें पहले दूसरे बाइट का एड्रेस क्या होगा, 1011 1012 1013। अभी ये कौन पांचवा बाइट है, दैट इज 1014 से स्टार्ट होगा और एक बाइट लेगा, देन दिस विल स्टार्ट एट 1015। फिर यहां से 4 बाइट लेगा 1617, दैट जब हम इंटीजर लिखते थे, कोई भी इंटीजर, मैं अभी इस कॉन्सेप्ट से जोड़ता हूं कि बाइट एड्रेसिंग कैसे होती है। सो ये 4 बाइट का होता था हमारा इंटीजर, और जब मैंने एरे के साथ डिस्कशन किया एट दैट मोमेंट, सपोज दिस इज अ 3 साइज अरे, ठीक है, तो इसकी एड्रेसिंग हम लोग क्या लिखते थे, 1010। सपोज यहाँ पे क्या लिखते थे, 1010, सपोज 1014 एंड 1018। ऐसा क्यों लिखते थे, इसलिए लिखते थे क्योंकि इस एक्चुअली ये क्या है, 4 बाइट का है, दिस इज ऑल्सो 4 बाइट, दिस इज ऑल्सो 4 बाइट, गिवन दैट ए इज एन इंटीजर अरे। ये दिया हुआ तभी हम ऐसा एजम्पशन कर सकते हैं, है ना। अगर ये कैरेक्टर एरे होता, अगर ये कैरेक्टर एरे होता तो ये 1 बाइट का होता, ये भी 1 बाइट का होता है, ये 1 बाइट का होता है, गिवन ए इज ए कैरेक्टर एरे। क्लियर। ओके, नाउ सी, एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा था, यहाँ पे 4 बाइट है ना, एक्चुअली कितने बाइट होंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 बाइट होंगे। यहाँ भी अपने पास कितना बाइट होगा, 4 बाइट होगा। तो इसका एड्रेस क्या होगा, 1010। अगले बाइट का एड्रेस होगा 1011, इसका होगा 1012 एंड 1013। हाँ ना, कर लिया मैंने, ठीक है। फिर जाके इसका एड्रेस हो गया 1014। इसलिए हम लोग 4 का जंप करते थे, क्यों, क्योंकि हम लोग हर बाइट को एक एड्रेस देते थे। इसलिए मैं जब लिखता था यहाँ पे 1010 तो अगले का एड्रेस 1014 लिखता था, क्यों, क्योंकि ये 4 बाइट का है और हर बाइट को एक एक एड्रेस। ठीक है, सो वी वर लुकिंग इनटू दिस स्ट्रक्चर। सो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रक्चर वाज कि बहुत अलग अलग टाइप के डेटा को एक जगह रख सके। हमने क्या किया, एक बॉक्स में सारे डेटा को रख दिया, उस बॉक्स का एक नेम दे दिया स्टूडेंट, और सी कहता है मैं इसे तभी रिकॉग्नाइज करूंगा अगर इसके पहले तुम स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाओगे। क्लियर।
अगर स्ट्रक्ट कीवर्ड लगा दिया तो स्ट्रक्ट कैसा दिखता है, ये स्टूडेंट जैसा हमारा पहले अरे ए होता था उस टाइप का अब हमारा ये क्या है, स्टूडेंट स्ट्रक्चर है। दिस इज नोन एज स्ट्रक्चर। जैसे अरे होता था वैसे ही स्ट्रक्चर है। तुम्हारे पास अब क्या तीन चीजें हो गई, एक हो गया हमारा वेरिएबल, so the first thing is our variable, any variable int a. Second thing is array int a of 5, and third thing is our structure. So how could we write in structure? देखो array कैसा होगा ये तो कंपाइलर में डिफाइंड है, ठीक है। गौर किया होगा तुमने कि यहाँ पे देखो अरे में क्या एलिमेंट्स होंगे, ये बस एक इंट कीवर्ड लिखने से हो जाता है काम। ए में क्या एलिमेंट्स होंगे, ये एक इंट कीवर्ड लिखने से हो जा रहा है। लेकिन किसी स्ट्रक्चर में क्या एलिमेंट होंगे ये हमें बताना पड़ता है, ठीक है। बताना अगर पड़ेगा तो दैट मीन कि वी नीड टू डिफाइन इट। सो जब कभी भी हम लोग कोई सी प्रोग्राम लिखेंगे सो वी नीड टू डिफाइन। अब मैं थोड़ा लेमन एग्जांपल पे आ जाऊंगा। आई विल राइट स्ट्रक्ट सपोज एनी स्ट्रक्चर नेम, सपोज इट्स नेम इज डेमो, ओके। एंड इसमें एक वेरिएबल है इंटीजर, इसमें एक वेरिएबल सॉरी ठीक है वाई ले लिया, एक फ्लोट एंड देन कैर सी, ओके। सो इतना है अपने पास वेरिएबल। ये अभी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है जो मैं बताने वाला हूं। ये जो नेम है ना डेमो नेम, एक्चुअली जब मैंने ये डिफाइन किया ना तो ये डेफिनेशन क्या बताता है, हमें बस ये बताता है कि डेमो एक नेम है, डेमो एक बॉक्स का नेम है। डेमो इज द नेम ऑफ दिस बॉक्स which has 4